بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف 8th کلاس. ایز یو نو ہم انگلش کے چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کمپلیٹ کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں. سو آج کا لیکچر ہمارا چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز کے اباؤٹ ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ایکسرسائز کو سولو کرتے ہیں. ہاں جی، ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز میں سب سے پہلے جو چیز دی گئی ہے وہ ہے کوشچن اینڈ آنسرز. کوشچن نمبر 1، واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس؟ اوکے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے پورا چیپٹر ٹالرنس کے اباؤٹ پڑھا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس کے بارے میں پڑھا ہے. تو اس کی ایکسرسائز کو بھی ہم اسی چیپٹر کو دیکھتے ہوئے سولو کریں گے. اس کے کوشچنس کے آنسر بھی ہم اسی کے اباؤٹ سولو کریں گے. ہاں جی، واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس؟ آنسر از دس: ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اینڈ ہارڈشپس ود پیشنس اینڈ ٹو بیئر انوانٹیڈ تھنگس. بالکل وہی بات جو ہم نے چیپٹر میں بھی ریڈ کی تھی کہ ٹالرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دکھ اور مصائب کو پیشنس صبر کے ساتھ برداشت کرنا اور ان چیزوں کو بھی برداشت کرنا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے. اوکے، کوشچن نمبر 2، گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول پیس بی اپون ہم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی ٹالرنس کی ایگزامپل کوٹ کرنی ہے. آنسر دیکھتے ہیں. ونس دا رسول پیس بی اپون ہم وینٹ ٹو طائف ٹو پریچ اسلام. دا پیپل دیئر تھرو اسٹونز ایٹ ہم. حضرت جبرائیل اپروچ دا رسول پیس بی اپون ہم اینڈ سیڈ if you want I will destroy them but the Rasul peace be upon him prayed for them. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تھے پریچ اسلام کے لیے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پہ پتھر برسائے تھے، جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی تھی. تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹالرنس ہے. کوشچن نمبر 3، How did the Rasul peace be upon him respond to the ill treated of the people of Taif؟ یعنی طائف کے لوگوں کی بد سلوکی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رسپانس کیا تھا؟ آنسر: in response to their ill treated to the Rasul peace be upon him instead of cursing them he prayed to Allah to show them the right path. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بد سلوکی پہ انہیں کرس نہیں کیا تھا، برا بلا نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں. کوشچن نمبر 4 ہے واٹ ڈیڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسک دا رسول پیس بی اپون ہم وین ہی واز ill treated by the people of طائف؟ کہ جب طائف کے لوگوں نے بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ تو آنسر بالکل وہی ہے جو ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام said to the Rasul peace be upon him او محمد، اے محمد speak، فرمائیے if you wish I will destroy them، کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کو تباہ کر دوں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے ہاؤ ڈیڈ دا رسول پیس بی اپون ہم ڈیل ود ہز اینیمیز ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ؟ یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے کیسے ڈیل کیا تھا؟ ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ دا رسول پیس بی اپون ہم فارگیو آل ہز اینیمیز. تو آنسر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اینیمیز کو معاف فرما دیا تھا. کوشچن نمبر 6، what did حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the Rasul peace be upon him؟ Answer is this: he said I served the Rasul peace be upon him of Allah for 10 years. He never objected to anything I said or I did. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، انہوں نے کبھی بھی مجھے آبجیکٹ نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا وہ کام جو میں نے کیا یا وہ بات جو میں نے کہی. لاسٹ کوشچن ہے واٹ ڈیڈ دا رسول پیس بی اپون ہم سے اباؤٹ ریونج ان ہز لاسٹ ایڈریس؟ یعنی آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریونج کے اباؤٹ کیا کہا ہے، بدلے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو آنسر کیا ہے؟ ہی سیڈ ریونج فار بلڈ شیڈ واز دا کسٹم آف دا ڈے ان دا ایج آف اگنورینس بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام از فاربیڈن. یعنی بلڈ شیڈ کا جو ریونج تھا، بدلہ تھا خون ریزی کا، وہ کسٹم تھا، رواج تھا جہالت کے دنوں میں اسلام کے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، از فاربیڈن اب ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ بدلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب منع کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ ایڈریس میں فرمایا.
ओके, क्वेश्चन आंसर हमारा ए पार्ट था। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या है, मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। आप लोगों को पता है कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स कोई भी नेम होता है और वर्ब्स क्या होते हैं, कोई भी काम होता है। तो यहाँ पे हमें वर्ब्स दिए गए हैं जिनसे हमने नाउन बनाने हैं। एग्जाम्पल उन्होंने साथ में एक कोड कर दी है, डाई मरना, और उससे उन्होंने नाउन बनाया है जो कि है डेथ, मौत। अब देखें, डाई मरना ये एक वर्ब है, काम है। इससे जब हमने नाउन बनाया है डेथ, तो वो नेम है, नाउन है। इसी तरह नीचे उन्होंने हमें वर्ब्स दे दिए गए हैं जिनसे हमने नाउन बनाने हैं। ओके, तो इसको हम यहीं पे कोड कर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ वर्ब से नाउन बनाए हैं हमने। सबसे पहले वर्ब उन्होंने क्या दिया है, टॉलरेट, बुर्दबारी, ठीक है, बर्दाश्त। बर्दाश्त करना ये वर्ब होगा तो इसका मतलब है कि बर्दाश्त करना। इससे हम नाउन बनाएंगे तो क्या होगा, टॉलरेंस, बर्दाश्त, बुर्दबारी। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस, मश्क करना, और प्रैक्टिस हमने नाउन बनाया है, मश्क। कंकर होता है फतह करना, ठीक है, तो नाउन जब बनेगा तो क्या होगा, कंक्वेस्ट, फतह। डिस्ट्रॉय, तबाह करना, खत्म करना, डिस्ट्रक्शन, तबाही। ओके, ऑब्जेक्ट, एतराज करना, एंड ऑब्जेक्शन, एतराज। तो ये सब के सब नाउन्स हैं जो हमने वर्ब से बनाए हैं। ओके, आवर सी पार्ट इज सुफिक्स, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। प्रीफिक्सेस होता है जब हमारे पास एक वर्ड होता है, उससे पहले हम कोई वर्ड ऐड कर लेते हैं, तो वो होता है प्रीफिक्स। सुफिक्स होता है जब हमारे पास कोई वर्ड होता है तो हम उसके बाद कुछ ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुफिक्स। द सुफिक्स सम, अब ये जो यहाँ पे सम है, ये वर्ड है, मीन्स फुल ऑफ, और इसका मतलब है भरा हुआ, ठीक है। द सुफिक्स लेस, जो लेस है वो भी सुफिक्स है और उसका मतलब है विदाउट। विदाउट, बगैर। द चेंज नाउन्स इनटू एडजेक्टिव, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये सुफिक्स जो है किस चीज का काम करेंगे, नाउन्स को ये चेंज कर देंगे एडजेक्टिव्स में। यानी जो हमारे पास नाउन्स दिए गए हैं वो सुफिक्स ऐड करने के बाद एडजेक्टिव्स का काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बर्डन, बर्डन हमारे पास क्या है, नाउन है। बर्डन सम हो गया है, मीनिंग क्या है इसके, मीनिंगलेस, ठीक है। बर्डन सम हो गया है तो बर्डन सम एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। एड सुफिक्स सम एंड लेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब उन्होंने क्या कहा है कि सम और लेस वाले दो सुफिक्सेस हैं, उनको आप नीचे के नाउन्स में ऐड करें। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लोन, लोथ, बोदर, ट्रबल एंड इर्क, ठीक है। ये हमें नाउन्स दिए गए हैं, इनके साथ हमने सुफिक्स सम ऐड करना है, ठीक है। आप आगे देख सकते हैं, लोनसम, लोथसम, बोदरसम, ट्रबलसम एंड इर्कसम, ठीक है। अब ये सब के सब क्या बन गए हैं, नाउन के साथ हमने सुफिक्स ऐड किए हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। अब ये एडजेक्टिव होंगे। नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, फ्लाथ है, ला, वर्थ एंड होप, और इसके साथ हमने लेस ऐड करना है, लेस सुफिक्स है हमारे पास, तो क्या बनेगा, फ्लॉलेस, थैंकलेस, लालेस एंड वर्थलेस, ठीक है। एंड लास्ट पे क्या है, होपलेस। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं जो हमने नाउन से बनाए हैं, सम और लेस सुफिक्सेस ऐड करते हुए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। नेक्स्ट पार्ट डी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। चैप्टर के अंदर से ये फिल इन द ब्लैंक्स ली गई हैं, इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट वन है डैश मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। क्या था हमारे पास, टॉलरेंस मीन्स टू बियर, तो यहाँ पे हम टॉलरेंस आ जाएगा। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। नेक्स्ट क्या है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ डैश ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे,
मॉडल ऑफ टॉलरेंस, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टूक डैश अपॉन एनीवन। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से क्या नहीं लिया? रिवेंज नहीं लिया। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे रिवेंज, रिवेंज। ओके, नेक्स्ट है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच इस्लाम के लिए कहाँ गए थे? ये भी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ताइफ। नेक्स्ट क्या है? इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर ब्लडशेड इज फॉरबिडन। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा? रिवेंज आएगा। ओके, पार्ट डी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ई की तरफ आते हैं। पार्ट ई में है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है सॉल्व करने वाला। ये आप लोगों की ओरली स्किल्स होती हैं, जैसे कि आप कुछ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बोलते हैं, रीडिंग करते हैं, तो ये वो वाली स्किल्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 5 पे। हाँ जी, पेज नंबर 5 पार्ट नंबर एफ। इसमें क्या है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से आप लोग पहले भी वाकिफ हैं। ठीक है, एग्जांपल उन्होंने दी है ही परचेज्ड अ बुक। फिर उन्होंने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज किया है, इंटेरोगेटिव में भी किया है। जैसा कि ही डिड नॉट परचेज अ बुक, डिड नॉट हो गया नेगेटिव, एंड डिड ही परचेज अ बुक, डिड स्टार्ट में आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव है। अब उन्होंने हमें 5 सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ही सोल्ड मैंगोज, नुमान रोट अ बुक, ही फोर्ट ब्रेवली, ही शोड ग्रेट टॉलरेंस। अब हम चेंज करते हुए क्या देखेंगे? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलेगा कि ये कौन से टेंस इसमें यूज हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट हुआ है, पास्ट हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरीके से हम पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके हिसाब से हम फिर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी कोड करेंगे और फिर हम उसमें क्वेश्चन वर्ब भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है ही परचेज द बुक, ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगाते हैं और इंटेरोगेटिव के लिए डिड लगाते हैं, डिड स्टार्ट में। ठीक है, तो हम इन सेंटेंसेस को अब चेंज करते हैं। ये ऐड कर चुके हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव है क्योंकि हमने इसमें डिड नॉट ऐड किया है, और सेकंड वाला हमारा है इंटेरोगेटिव क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। इसी तरह हमने सारे के सारे 5 सेंटेंसेस को चेंज कर लिया, इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।